Hey guys, welcome back to my channel Educom Coaching. Here I am again with a new video on new topic, and my today's topic is BBA. Actually, this video is especially for my friend who comment in my previous video to prepare a video on BBA. So here I am. After watching this video, your concept related to BBA will totally clear. Means what are the college are there, means which college we have to choose, what are the courses fees, what are the job orientation, means career options, all these things will totally clear. So let's get started. BBA. First we have to understand what is BBA. BBA stand for Bachelor of Business Administration. Okay. So BBA stand for Bachelor of Business Administration. ये हम लोग कब कर सकते हैं? After 10+2 means after completing your HS higher secondary 10+2 you can go for a BBA if you are belonging from a commerce background. Okay, this is 3-year course. Okay, in which there is 6 semester exam. Means in every 6th month you have your first semester, second semester, like this. Okay, this is very simple. After completing your 10+2, either you will go for BCom or BBA. Okay, I'll give you a brief description about this. What is the difference between BCom and BBA? Okay, but let me discuss first related to BBA. Why we choose BBA? In this, you will get broad knowledge about any company and its function. देखो, कोई भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उससे हम लोग क्या चीज सीख सकते हैं, उससे हमको क्या मदद मिलने वाला है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए. सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ BBA, you will get a broad knowledge related to any company and function. Means how you have to regulate your business. If you are a company CEO, कैसे आपको बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे क्या क्या करना है, you will get to know after BBA. Okay. Helps to improve leadership. Simply, if you have to run any kind of business, you have this quality, leadership quality. Okay. Help to develop himself as entrepreneur or businessman. Means after getting the idea related to business, you can go for a business. Means you can establish your own business. Okay. Now look at the subjects. Means what are the important subjects related to BBA? If you are going through a BBA, means accounting, accounting is compulsory in this.
Okay, after that, economic, management, marketing, finance, HRM, human resource management, maths, stats, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट दीज आर द मेजर सब्जेक्ट यू हैव टू डील विद दिस. ओके, नाउ लुक एट द सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज. Subject for semester 1 means in your first semester you have 5 major subjects. Maybe it's changed as per the college, but these are the main one. Like first one is principal and practical management. Remember this one, practical. Next one, business communication. FA, that is financial accounting. Business law. What are the norms and conditions for the business, you will know after reading this one. And business economic. So these are the 5 subjects you have to deal in your first semester. There is an optional also, that is CA, computer application. ये है फर्स्ट सेमेस्टर का. सेकेंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट चेंज होगा, थर्ड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट चेंज होगा, बट इसी तरह का रहेगा जो भी रिलेटेड टू बिजनेस. मीन्स इन योर फर्स्ट सब्जेक्ट, हाउ यू विल मैनेज योर बिजनेस, हाउ यू विल कम्युनिकेट योर बिजनेस, हाउ यू विल फिनांस योर बिजनेस, व्हाट आर द लॉज फॉर द बिजनेस, व्हाट आर द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस, एंड दिस इज ऑप्शनल. Okay, now we will discuss what are the career option. Main things means इतना पढ़ने के बाद at the end करना क्या है उस बारे से हम लोग जानेंगे. Career option. Career option. आप after completing your BBA, you can pursue for MBA or CA, that is Chartered Accountant, HM, Hotel Management, Law, Event Management, or you go for a business, means like a boss. Okay, these are the career option you will get after BBA. So how much you will earn after completing this? This is a very big question. So salary, what are the salary package? The salary package is 2 to 3 lakh. That is per year. Maybe 20 to 25,000 per month. Okay, so these are the salary package which provided for the BBA candidate. Okay, maybe this is the average salary for our state. If you go for a Bangalore or Kerala, you will get more than this. Okay, all that सबके मन में ये ख्याल होगा कि कहाँ पे हम लोग ये सब मीन्स बीबीए कर सकते हैं, मीन्स व्हाट आर द कॉलेज. सो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंस कॉलेज के बारे से बताऊंगा. देखो, बीबीए के बाद आपको करियर पे परस्यू करना है, तो आई थिंक
आपको अच्छा कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां से प्लेसमेंट मिलेगा, देन यू विल गेट योर सिक्योर जॉब। ओके, सो बहुत सारी कॉलेजेस है। आई लीड नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, IEM इंडस्ट्रियल इवेंट मैनेजमेंट, श्री शिखा सदन कॉलेज, ओके, JIS ग्रुप। These are the private institution, but this is good for BBA और ऐलान, MAT, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और दिस वन सेंट जेवियर, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। टेक्नो इंडिया, ये आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, नॉट बिकॉज ऑफ BBA, बिकॉज ऑफ एवरी काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्सेज यू कैन ज्वाइन एंड गेट द डिग्री फ्रॉम टेक्नो इंडिया। और भवानीपुर कॉलेज से आप कर सकते हैं। और देशबंधु, this college is only for girls. Okay, if any girls want to do BBA, please pursue career with Deshbandhu College. Okay, now the most important things जो कि आपको कोई भी नहीं बताने वाला, this is my personal experience. Okay, hopeful आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा कि आपको कौन से कॉलेज से करना है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, आप BBA करके क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या किससे समझ सकते हैं। बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंपैरिजन बिटवीन BCom एंड BBA। ऑब्वियसली 10+2 के बाद आपके पास ये दोनों रास्ता है, आइदर यू गो फॉर अ BBA और यू गो फॉर अ BCom। लेट्स चेक व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज BBA एंड BCom। फर्स्ट सिमिलरिटीज इज दिस कि दोनों ही 3 साल के लिए होता है, ठीक है। और पैकेज जो है, एज पर माई एक्सपीरियंस, 1 साल के लिए आपको BBA में 50,000 लगेगा, ओके। और इफ यू गो फॉर अ BCom, आप 5K में कर सकते हैं 1 साल, ठीक है। मीन्स इफ यू गो फॉर अ BBA, आपको 3 साल में 1.5 लाख लग सकता है, यहां पे सिर्फ 15,000 में हो सकता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस। और इसके पीछे का रीजन भी ये है कि यहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, BBA के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। यू हैव टू गो विद द प्राइवेट वन, लाइक MAT है, JIS, जैसे मैंने कॉलेज का नाम बताया, दिस आर ऑल आर द प्राइवेट कॉलेज, इसलिए आपको फीस बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और लोग BBA इसलिए चूज करते हैं बिकॉज दिस वन इज प्रेस्टिजियस वन, ठीक है। मेजर चेंजेस दोनों में कुछ नहीं है एज पर माई व्यू। आप 10+2 के बाद MCom करो, उसके बाद BCom के बाद आप MCom नहीं करके, ओके, MCom नहीं करके MBA कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंसेस बस यही है ना कि इसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। इफ यू आर टैलेंट, इफ यू हैव एन एबिलिटी, आप BCom करके भी ये सारी स्किल को समझ सकते हैं, ओके। तो इफ यू आर ओके विद द BBA, गो फॉर अ BBA, ओके। बट आप BCom कीजिए, उसके बाद MBA कीजिए,
यहाँ पे आपको अमाउंट भी बहुत कम लगेगा। 3 साल में सिर्फ 15,000 रुपया, मीन्स आप खुद से भी दे सकते हैं। ओके, और उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। सैलरी पैकेज जो है मोर और लेस सेम ही मिल जाएगा। और अगर उसके बाद आप एमबीए कर लेते हैं तो आपका पोजीशन भी बढ़ सकता है और सैलरी भी अच्छा हो सकता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस। ओके, आप आराम से बीकॉम करो, ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, आराम से आप उसको कर सकते हो। उसके साथ कोई वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो और आपका बीकॉम दैट इज ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपके पास कोई डिग्री भी होगा और कोई वोकेशनल कोर्सेज का आइडिया भी होगा। उसके बाद यू गो फॉर अ एमबीए, तो एमबीए भी हो जाएगा आपका। तो इसके साथ क्या है कि आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। और किसी भी कंसेप्ट पे डाउट है प्लीज कमेंट में, मैं उसको टोटली क्लियर कर दूंगा। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन चाहिए मैं उसको बता दूंगा, या फिर बीकॉम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए मैं उसको बता दूंगा। इससे रिलेटेड कौन कौन सा कॉलेज में आप जा सकते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और इस बारे से डिस्कस करें। थैंक यू ऑल।